Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to solve a very beautiful question and very beautiful concept. इस क्वेश्चन में हम विंटर एयर कंडीशनिंग को डिजाइन करने वाले हैं and by the using of a question and by the using of an example, we have to design our winter air conditioning. Okay. मतलब हम विंटर एयर कंडीशनिंग की डिजाइन करने वाले हैं, बट किसके बेस पे? हम क्वेश्चन के माध्यम से। इज इट ऑल राइट? तो हम क्वेश्चन के माध्यम से अपने इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, अपने इस विंटर एयर कंडीशनिंग की डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन हमारा फोकस क्या रहेगा, मेन टारगेट क्या रहेगा कि बाय यूजिंग एप्लीकेशन, ओके, बाय यूजिंग ऑफ एप्लीकेशन, by using of application, that means by using of question, we have to solve and we have to understand about winter air conditioning and we have to design for it कि हम इसकी डिजाइन करेंगे विंटर एयर कंडीशनिंग की किसकी मदद से? by using of application and by using of some basic examples के through. Okay, so here your question is, first of all we have to write our question. So here your question is 300 meter cube, 300 meter cube, 300 meter cube per minute of air, per minute of air. That means cmm. That means cmm at 10 degree centigrade. At 10 degree centigrade of dry bulb temperature. Of dry bulb temperature at 90% RH. At 90% RH. Okay, is to be heated and humidified, is to be heated and humidified, okay, is to be heated and to be humidified to 35 degree centigrade, 35 degree centigrade dry bulb temperature, and 22 degree centigrade and 22 degree centigrade wet bulb temperature. Okay, wet bulb temperature. Okay, the required condition are the required condition are achieved by are achieved by sensible heating, okay, sensible heating, adiabatic humidify, adiabatic humidifying, adiabatic humidifying, and again by sensible heating, and again by sensible heating, okay, and again by sensible heating. Is all right? The relative humidity of air, the relative humidity of air, the relative humidity of air coming out of coming out of adiabatic process, adiabatic process. Is all right? And humidifier is 90%. Adiabatic process humidifier is 90%. Okay, so calculate. So first of all calculate what first thing is heating capacity of first heater, heating capacity heating capacity of first heater,
of first heater and bypass factor and bypass factor BPF if the surface temperature of coil is 40%. If the surface if the surface temperature of coil if the surface temperature of coil is 40 degrees centigrade 40 degrees centigrade. Second one is the capacity of adiabatic humidifier. Capacity of adiabatic adiabatic humidifier in kg of water vapor in kg of water vapor per hour. ये आपको एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर की कैपेसिटी को फाइंड करना है कितना किसमें इन केजी ऑफ वाटर वेपर पर आवर, दैट मीन्स मास फ्लो रेट. ओके, एंड हियर थर्ड क्वेश्चन इज कि हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड हीटर आपको फाइंड करना है. हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंड हीटर आपको फाइंड करना है. एंड सरफेस टेम्परेचर इफ बाईपास फैक्टर इज 0.5 एंड सरफेस टेम्परेचर आपको फाइंड करना है इफ बाईपास फैक्टर इज 0.5. अगर बाईपास फैक्टर आपका 0.5 हो जाए then you have to find your surface temperature. And fourth and last one thing आपको क्या फाइंड करना है, ह्यूमिडिफाइंग efficiency. ओके, ह्यूमिडिफाइंग efficiency you have to find out of adiabatic humidifier. ओके, ऑफ एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर आपको ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी भी फाइंड करना है. इज ऑल राइट. So for that question, 300 meter cube per minute of air CFM at 10 degrees centigrade of dry bulb temperature at 90% relative humidity is to be heated and humidified to 35 degrees centigrade dry bulb temperature and 22 degrees centigrade wet bulb temperature. The required conditions are achieved by sensible heating, adiabatic humidifying, and again by sensible heating. The relative humidity of air coming out of adiabatic process humidifier is 90%. So calculate. First one is your heating capacity of first heater and bypass factor if the surface temperature of the coil is 40%. Second one thing is what you have to find your capacity of adiabatic humidifier in kg per water vapor per hour. And third one is your heating capacity of second heater and surface temperature if bypass factor is 0.5. And fourth one is your humidifying efficiency of adiabatic humidifier. That means ये चार चीजें इस क्वेश्चन के लिए अब आपको फाइंड करनी है. So now we have go with solution. अब हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है और चीजों को ऑब्जर्व करना है. तो सबसे पहले जो जो गिवन डेटा है उनको चार्ट के फॉर्म में सबसे पहले हम उनको नोट करेंगे. तो यहाँ से आपका इस तरीके से आउटलेट कंडीशन पे है. आपका फर्स्ट यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट आपका हीटर लगा हुआ है. एज पर क्वेश्चन ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप इजीली चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर आपका लगा हुआ है. ठीक है, एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर आपका लगा हुआ है. एंड देन आफ्टर दैट योर साइकिल इज गोना बी दिस. एंड अगेन सेकेंड हीटर लगा हुआ है पिक्चर में. एंड अगेन सेकेंड हीटर आपका पिक्चर में लगा हुआ है यहाँ पे in this box. Okay, in this box again a second heater is gonna be installed. And after that something, that means इस तरीके से आपकी साइकिल फ्लो हो रही है. इस तरीके से आपकी साइकिल फ्लो हो रही है. Is it all right? That means in this cycle your heater is gonna be installed. And that will be your heater number first. Okay, एंड यहाँ पे एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है. यहाँ पे एडियाबैटिक
एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है एज पर क्वेश्चन। ठीक है ना, एज पर क्वेश्चन ये इतनी चीजें हो रही है। यहाँ पे आपका कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, एंड सॉरी हीटर लगा हुआ है, एंड दैट विल बी योर हीटर नंबर सेकंड। ठीक है, that will be your heater number second, and that will be your point number 4, that will be your point number first, that will be your point number second, and that will be your point number third, that will be your point number third। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें गिवन है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आपका जो सीएमएम गिवन है, सीएमएम ये कितना गिवन है, 300, 300 एज पर क्वेश्चन हियर, 300 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है ना, मीटर क्यूब पर मिनट, ये इतना आपको गिवन है सीएमएम। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो टी गिवन है वो कितना गिवन है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टी गिवन है। आर एच यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 90% आपको आर एच गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो हीटर का कॉइल टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाईपास फैक्टर आपको फाइंड करना है, बाईपास फैक्टर इस कंडीशन के लिए आपको फाइंड करना है। एंड अगेन हियर योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको कितनी गिवन है, 90% आपको गिवन है। एंड आफ्टर दैट योर आउटलेट कंडीशन इज गिवन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, दैट मीन्स here T is your 35 degree centigrade, and here your wet bulb temperature T dash wet bulb temperature is given as 22 degree centigrade। तो ये इतना आपको चीजें given है। That is in winter AC we take 2 heater and 1 adiabatic humidifier generally used in foreign country। ये जो इस तरीके का कंडीशन आपको दिख रहा है, ये जनरली यूज किया जाता है कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में, जनरली used in foreign। okay, generally used in foreign country, फॉरेन कंट्री में यूज किया जाता है, मतलब दैट इज इन विंटर एयर कंडीशनिंग, इन विंटर इन विंटर एयर कंडीशनिंग we take two heater we take two heater we take two heater and what and one adiabatic humidifier and one adiabatic humidifier। ओके, तो ये इतना पिक्चर में लेके चलना है। यहाँ पे देखो 1 एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर है और 2 हीटर लगा हुआ है, दैट इज विल बी योर हीटर नंबर सेकंड। तो 2 हीटर लगा हुआ है और एक एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, और ऐसा कंडीशन जनरली फॉरेन कंट्रीज में प्रेफर किया जाता है। ओके, सो as per this flow diagram we have to draw our psychometric chart। तो इस फ्लो डायग्राम के बिहाफ पे अब हमें साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, तभी हम सारी अननोन वैल्यूज को हम इजीली कैलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम सारी अननोन वैल्यूज को इजीली कैलिब्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, एंड हियर योर योर फाई इज इक्वल टू 100%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कितनी है, 100% है। एंड ये आपका यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी गिवन है, यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है वो कितनी गिवन है, 90% आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है। ठीक है, इज ऑल राइट और नॉट, ओके ना। सो एज पर क्वेश्चन जो गिवन डेटा आपको है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। 90% जो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है दैट विल बी योर पॉइंट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखो 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, दैट विल बी योर पॉइंट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखो दैट विल बी योर पॉइंट नंबर सेकेंड। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड को ड्रॉ करिए, दैट विल बी योर पॉइंट नंबर थर्ड, एंड हियर दैट विल बी योर पॉइंट नंबर फोर। ये इतनी सारी सिचुएशंस आपको गिवन है। ओके, ये सब जितनी भी वैल्यूज गिवन है इन सब का सबसे पहले
आप इस एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्सिस है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्सिस है विच इज डिनोटेड बाय इन टी in degree centigrade. Okay, and here for that question आपको specific humidity that means ओमेगा भी आपको गिवन है जो कि इस एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है। ओके, that will be your here here that will be your heating temperature that means S, ये S वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ ये S वाले पॉइंट का जो टेम्परेचर गिवन है वो माय डियर फ्रेंड्स कितना गिवन है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। यहाँ पे आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड इस आउटलेट 4 पॉइंट का आउटलेट का 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ये टेम्परेचर गिवन है। ओके, इस सेकंड पॉइंट का जो आपको टेम्परेचर यहाँ पे देखो, सेकंड पॉइंट का टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपको गिवन है। एंड योर फर्स्ट पॉइंट का टेम्परेचर जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 90%, इतना आपको वैल्यूज गिवन है। तो ये है आपकी साइकोमेट्रिक चार्ट एज पर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट अगर ड्रॉ हो गया है, so then you have to easily calibrate your all the given unknown value. ओके, तो आप सारे के सारे गिवन अननोन वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर सॉल्यूशन। अब आप यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, यूज ऑफ according to use of psychometric chart, we have to calibrate at point first। सबसे पहले तो at point first के लिए हमें जो भी अननोन चीजें हैं उनको हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ से हमें सबसे पहले h1 जो नहीं गिवन है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे जो h1 हमें नहीं गिवन है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो h1 आपका होगा, h1 अगर डायरेक्टली हम फार्मूला करके अगर हम h1 यहाँ हम फाइंड करते हैं तो वो h1 कितना होगा उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो h1 माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो h1 होगा वो h1 होगा आफ्टर द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला, आपका h1 हो जाएगा 28 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, और आफ्टर द यूजिंग ऑफ ओमेगा 1 फार्मूला दैट मींस 0.0026 इन ब्रैकेट पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी, अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.007 केजी पर वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये इतना आपको इजीली पता चल जाएगा। मतलब आपको साइकोमेट्रिक चार्ट सबसे पहले पिक्चर में लेके आना है। साइकोमेट्रिक चार्ट से हम पॉइंट 1 का सारा अननोन वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसके बाद बाय द यूजिंग ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट जो आपके सेमेस्टर में होता है उसका यूज करके हम फोर्थ पॉइंट का भी जो भी अननोन वैल्यूज हैं दैट मींस h4 है उसको भी हम इजीली फाइंड करेंगे। दैट मींस 64 के अप्रॉक्स आएगा किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, और साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करके हमें ओमेगा 4 फाइंड करना है। वो कितना आएगा, आप जब साइकोमेट्रिक चार्ट को देखोगे तो वो कुछ इतना आएगा। ठीक है, ऑफ ड्राई एयर वो कुछ इतना आएगा। अगर एट पॉइंट थर्ड के लिए बात करें, अगर एट पॉइंट थर्ड के लिए हम बात करें तो थर्ड पॉइंट के लिए आपका जो H3 मिलेगा वो H3 कितना मिलेगा, 47 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर मिलेगा। ओके, एंड आपका जो ओमेगा 3 फाइंड करेंगे वो ओमेगा 3 कितना मिलेगा, वो आपको ओमेगा 3 मिलेगा दिस वाटर वेपर ऑफ पर केजी ड्राई एयर, ये आपको इतना मिलेगा। एंड यहाँ से आपको T3 मिलेगा, T3 कितना मिलेगा, 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। एंड एट पॉइंट थर्ड एट पॉइंट थर्ड सॉरी एट पॉइंट सेकेंड अगर साइक्रोमेट्रिक का आप यूज करेंगे तो यहाँ से ओमेगा 2 इज जस्ट इक्वल टू ओमेगा 1। दैट मीन्स हियर ओमेगा 2 वैल्यू आपके ओमेगा 1 के इक्वल होगा, मतलब कितना होगा 0.007 विद यूनिट होगा। एंड फॉर दैट योर टेम्परेचर इज गिवन एज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हियर S2 इज जस्ट इक्वल टू S3 होगा and here your H3 value is 47 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये इस तरीके से इतनी जितनी भी अननोन वैल्यूज हैं आप इजीली उनको फाइंड कर लोगे। अब नाउ इस अननोन वैल्यूज का यूज करके अब आप जो भी अननोन डेटाज हैं
दैट मीन्स जो भी ये 4 पॉइंट है, एक बार जूम करते हैं, और जो भी ये 4 पॉइंट है वो सारे के सारे 4 पॉइंट को अब हम इजीली कैलिब्रेट करेंगे। हमारे 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं? हमारे 4 पॉइंट हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज हीटिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट हीटर एंड बाईपास फैक्टर इज द सरफेस टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड and here capacity of adiabatic humidifier in kg per water vapor per hour, and here heating capacity of second heater and surface temperature this, and here humidifying efficiency and adiabatic humidifier this। तो आपको इतनी सारी वैल्यूज को आपको फाइंड करना है, इतनी सारी वैल्यूज को अब आपको फाइंड करना है। तो इतनी सारी वैल्यूज को आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? बाय दिस यूजिंग ऑफ दिस डेटा। बाय द यूजिंग ऑफ दिस डेटा you have to find these all unknown values। now you have to go for your what solution number first। तो अब आप solution number first के लिए जाओगे, ठीक है, एंड फर्स्ट वाली चीज आप फाइंड करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली चीज आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे देखो पीछे, फर्स्ट वाली चीज आपको हीटिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट हीटर आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर प्रोसेस, यू हैव टू गो फॉर प्रोसेस फर्स्ट एंड 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड आपको फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेकेंड आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से आप करोगे मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इन ब्रैकेट H2 माइनस H1, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करके 617 इन ब्रैकेट 46 माइनस 27 आप करोगे। तो यहाँ से आप यूज करके 117.28 किलोवाट आप इजीली फाइंड करोगे, ओके। आप इजीली फाइंड करोगे एंड दैट विल बी योर आंसर, ओके। इज इट ऑल राइट और नॉट? और अगर मास फ्लो रेट ऑफ द एयर को अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? CMM को अप्लाई करोगे 300 मीटर क्यूब, 300 मीटर क्यूब पर मिनट आप करोगे, एंड यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट दैट मीन्स मास फ्लो रेट ऑफ द एयर आप CMM अपॉन दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम करके आप इजीली इन केजी पर मिनट में इजीली आप फाइंड करोगे। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम इजीली पता चल जाएगा। तो अगेन आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखना है और यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना पता चलेगा? 0.81 मीटर क्यूब पर केजी आपको फाइंड होगा, ओके। दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई योर फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम, and what will be your 300 divided by 0.81 आप करोगे। तो यहाँ से 370, यहाँ से 370.37 केजी पर मिनट आपको फाइंड होगा। दैट मीन्स यहाँ से आप इजीली मास फ्लो रेट ऑफ द एयर को फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा? 6.17 केजी ऑफ ड्राई एयर होगा डिवाइडेड बाय सेकेंड, इस तरीके से फाइंड होगा। और अगर बाईपास फैक्टर अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है, देन यू हैव टू गो फॉर कॉइल टेम्परेचर माइनस योर दिस 2 पॉइंट टेम्परेचर, and again coil temperature minus this first temperature, that means you have to minus from 40 minus 27, that means 40 minus 10 आप अगर करोगे तो 13 divided by 30 आएगा। and your bypass factor for this question, bypass factor for this question कितना हो जाएगा? 0.4333, that will be your answer। so this will be your first solution answer, मतलब फर्स्ट का ही आंसर है। अब अगर सेकंड के लिए सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो सेकंड के लिए आप क्या करोगे? सेकंड में आपको फाइंड क्या करना था कि सेकंड में आपको कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर इन प्रोसेस सेकंड एंड थर्ड आपको पता करना था। यहाँ पे आपको क्या पता करना था? कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक, कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक, कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर, capacity of adiabatic humidifier in process in process in process second and third आपको फाइंड करना था। ये इतना आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए वर्क एज एड मॉइस्चर, दैट मीन्स ह्यूमिडिफायर, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हो? मास फ्लो रेट ऑफ द एयर एंड ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2, आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं।
So by the application of this formula and by the application of all the given values 6.17 in bracket 0.011 minus 0.007 आप लिखोगे तो यहाँ से इजीली आप कैलिब्रेट कर लोगे अपने capacity of adiabatic humidifier. That means that will be your perfect answer in 0.0246 in kg of water vapor per dry per second, sorry, per second. Okay, so अगर इस सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप इजीली इसको 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे 60 दैट मींस 60 इंटू 60 से, दैट मींस यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 88.84 kg ऑफ वाटर वेपर होगा और वाटर वेपर पर आवर होगा. इज इट राइट? एंड दैट विल बी योर आंसर नंबर सेकंड. ये इस तरीके से होगा. अगर थर्ड के लिए आप बात करो, थर्ड के लिए अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए देखो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए अगर देखो तो आपको हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सेकंड हीटर आपको लिखना होगा. हीटिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सेकंड हीटर, ये चीज पता करना है ना. तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सेकंड हीटर आप इसको लिखेंगे. तो यहाँ पे अगेन आप मास फ्लो रेट ऑफ द ड्राई एयर एंड फोर्स माइनस H3 आप करेंगे. यहाँ से इजीली आप 6.17 इन ब्रैकेट 65 माइनस 46 करके और यहाँ से आप 117.23 किलोवाट में आप आंसर को पालोगे एंड दैट विल बी योर थर्ड आंसर. एंड फॉर दैट क्वेश्चन you have to also find your bypass factor for the coil. आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, आप TS माइनस T4 करोगे एंड डिवाइडेड बाई TS माइनस T3 करोगे. ठीक है. सो यहाँ पे आप 0.5 लिखोगे एंड TS माइनस 35 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई आप TS डिवाइडेड बाई TS माइनस आप 17, TS माइनस आप 17 करोगे, TS माइनस 17.5 करोगे. ओके. तो इसके थ्रू आप इजीली TS की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. वो कितना होगा 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये चीज आपकी हो जाएगी एंड दैट विल बी योर आंसर. एंड अगेन इसी तरीके से अब आपको फोर्थ नंबर फाइंड करना है. ठीक है ना. इसी तरीके से आपको फोर्थ नंबर फाइंड करना है. फोर्थ नंबर में आपको इफिशियंसी ऑफ ह्यूमिडिफायर, एफिशिएंसी ऑफ योर ह्यूमिडिफायर आपको पता करना है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल, एक्चुअल अपॉन आइडियल है. इज इट ऑल राइट और नॉट? दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, ओमेगा एस माइनस ओमेगा 2. आप इजली इसको लिखेंगे. तो यहाँ से सारी वैल्यू को पुट करेंगे एंड आप कैलिब्रेट करेंगे, दैट मीन्स कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे आप ओमेगा एस की वैल्यू आप कितना लिखेंगे एंड यहाँ पे आप 007 लिखेंगे. सो बाय दैट यू हैव टू फाइंड योर efficiency of humidifier and efficiency of humidifier is nothing but what, 80%, and that will be your perfect answer. Okay. So by this way we have to solve our question. Okay ना. By this way we have to solve our question. तो इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप. और यहाँ पे देखिए तो हमने विंटर एयर कंडीशनिंग को भी डिजाइन किया, उसकी इफिशियंसी से लेके उसकी जितनी भी हीटर की कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी हो सकती है वो सब सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजों को हमने अंडरस्टैंड किया. सो माय डियर फ्रेंड्स, बाय दिस लेक्चर वी हैव टू फिनिश आवर चैप्टर नंबर 6. अब चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो रहा है. ओके. चैप्टर नंबर 6 आपका 100% फिनिश हो रहा है एज पर गेट एग्जामिनेशन. Okay, so as per GATE examination, here your chapter number 6 gonna be finished. That means air conditioning. Air conditioning अब आपका फिनिश हो रहा है. Now chapter number 7 से we have to start our designing portion. Okay, तो चैप्टर नंबर 7 हमारा डिजाइनिंग पोर्शन होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू.